Hello students, welcome to IURH. So in this second part of the anatomy of breast, we are going to learn about the blood supply, nerve supply and lymphatic drainage of the breast. So let's get started. First we'll see the arterial supply of the breast. So breast ये supply होती है by the three arteries. सबसे पहले आती है internal thoracic artery, the internal thoracic artery. Then comes the lateral thoracic, superior thoracic and acromial thoracic, or which is also known as thoracoacromial artery. And the last one is the posterior intercostal arteries. So जो internal thoracic artery है, it is a branch of the subclavian artery through its perforating branches. We can understand this in this picture. सो सबक्लेवियन आर्टरी इज दिस आर्टरी जो कि फर्स्ट रिब के इंटरनल साइड में और मीडियली फर्स्ट रिब के मीडियली जो आर्टरी प्रेजेंट होती है, दिस इज द सबक्लेवियन आर्टरी. एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये इस सबक्लेवियन आर्टरी की ही ब्रांच होती है. दिस वी कैन सी हियर, दिस इज द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इस इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ही परफोरेटिंग ब्रांचेस, दीज आर द परफोरेटिंग ब्रांचेस, ये ब्रेस्ट को सप्लाई करते हैं. Next one is the lateral thoracic, superior thoracic and thoracoacromial artery, which are the branches of the axillary artery. So हमने देखी सबक्लेवियन आर्टरी जो कि फर्स्ट रिब के इंटरनली प्रेजेंट होती है और इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होती है, और यही सबक्लेवियन आर्टरी जब फर्स्ट रिब को क्रॉस करके आगे बढ़ती है और लैटरल साइड में जाती है, तो यही सबक्लेवियन आर्टरी कहलाती है एक्सिलरी आर्टरी. So from the outer border of the first rib, it is called as the axillary artery. Axillary artery is the continuation of the subclavian artery only, and from the outer border of the first rib, it is called as axillary artery. Axillary artery के तीन branches होते हैं जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई करते हैं. सबसे पहली ब्रांच आती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, दिस इज द सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. Then comes the acromiothoracic artery or thoracoacromial artery, and the last one is the lateral thoracic artery which is present laterally. So axillary artery की ये तीन branches breast को supply करते हैं, and breast को और supply भी मिलता है from the posterior intercostal arteries. These are the lateral branches of the posterior intercostal arteries. सो ब्रेस्ट का आर्टेरियल सप्लाई हमने देखा. फर्स्ट इज द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस. देन एक्सिलरी आर्टरी के तीन ब्रांचेस विच इज द सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक एंड लैटरल थोरेसिक, एंड लैटरल ब्रांच ऑफ द पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. सो ये जो आर्टेरियल सप्लाई है ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली और मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट. ब्रेस्ट का जो एंटीरियर सरफेस है ये एक्सट्रीमली वैस्कुलर होता है एज कंपेयर टू द पोस्टेरियर सरफेस, बिकॉज पोस्टेरियर सरफेस पे जो आर्टरीज है वो मतलब जो सरफेस है वो रिलेटिवली अवेस्कुलर होता है, वहाँ पे ज़्यादा आर्टरीज प्रेजेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इज द venous drainage. So the veins follows the artery. जिस तरीके से हमने arterial supply देखा और जो जो arteries present होती है उन्हीं के साथ साथ veins भी present होती है and उनके नाम भी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं. So venous drainage two parts में होता है. पहला superficial sets और दूसरा आता है deep sets. So superficial veins जो होती है वो drain करती है into the internal thoracic vein and into the superficial veins of the lower part of the neck. So हमने देखा medial side पे internal thoracic artery present होती है और उसी के साथ रन करती है internal thoracic vein. So जो superficial set होते हैं veins के वो drain करते हैं into this internal thoracic veins and also into the superficial veins of the lower part of the neck. और जो deep sets होते हैं vein के, deep veins होते हैं वो drain करते हैं into the axilla, axillary vein and the posterior intercostal veins. Again same as the axillary artery के साथ run करती है axillary vein and posterior intercostal artery के साथ run करती है posterior intercostal vein. and जो deep veins होते हैं ये इन दो veins में drain करते हैं, axillary vein and posterior intercostal veins.
तो वीनस ड्रेनेज भी हमने 3 वेन्स में देखा है। पहले तो वेन्स 2 सेट्स में प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट में, सुपरफिशियल सेट एंड डीप सेट। सुपरफिशियल सेट ड्रेन करते हैं इनटू द इंटरनल थोरेसिक वेन एंड डीप सेट्स ये ड्रेन करते हैं इनटू द एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। नेक्स्ट विल सी द नर्व सप्लाई। सो ब्रेस्ट को नर्व सप्लाई मिलता है थ्रू द इंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स। 4th to 6th जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती है उनकी एंटीरियर ब्रांचेस मीडियली सप्लाई करती है ब्रेस्ट को, दीज आर द एंटीरियर ब्रांचेस, और लैटरल ब्रांचेस और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस लैटरल साइड से आके ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। सो इन नर्व्स के जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो स्किन को सप्लाई करते हैं एंड जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स को सप्लाई करते हैं और ऑल्सो टू द ब्लड वेसल्स। सो जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं, इन सेंसरी फाइबर्स का मेन फंक्शन ये होता है, दे डिटेक्ट द पेन, टेम्परेचर और टच। पेन, टेम्परेचर और टच को डिटेक्ट करने का काम ये सेंसरी फाइबर्स का होता है। ऑल्सो स्किन में, निपल्स में, एरियोला में कौन से टाइप के सेंसेशंस अगर हो रहे हैं तो वो भी ये सेंसरी फाइबर्स के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं और ये डिटेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद ऑटोनॉमिक फाइबर्स। सो ऑटोनॉमिक फाइबर्स ये इनवॉलेंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो निपल्स के और एरियोला में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं या ब्रेस्ट में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करने का काम ये ऑटोनॉमिक फाइबर्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निप्पल इरेक्शन होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ड्यूरिंग कोल्ड, जो निप्पल इरेक्शन होता है वो गवर्न होता है थ्रू दिस ऑटोनॉमिक फाइबर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। द नर्व्स डू नॉट कंट्रोल द सिक्रिएशन ऑफ द मिल्क। जो नर्व सप्लाई है ये सिक्रिएशन ऑफ मिल्क को कंट्रोल नहीं करते हैं, बट सिक्रिएशन जो है ये कंट्रोल होता है बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन से ब्रेस्ट में मिल्क सिक्रिएशन ये कंट्रोल होता है, जो कि सिक्रेट होता है बाय द पार्स एंटीरियर ऑफ द हाइपोफाइसिस सेरेब्रम। So we have seen nerve supply, anterior and lateral cutaneous branches से breast को nerve supply मिलता है 4th to 6th intercostal nerves के, and they have the sensory fibers, they convey the sensory fibers to the skin and autonomic fibers to the smooth muscles and to the blood vessels. Next we'll see the lymphatic drainage. So lymphatic drainage भी हम 2 parts में देखेंगे। सबसे पहले विल सी लिम्फ नोड्स, कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं एंड कौन सी लिम्फेटिक वेसल्स इन्वॉल्व होती है और वो किस तरीके से ड्रेन होती है। सो लिम्फ नोड्स में वी हैव फर्स्ट वी हैव द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और द ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स 5 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट और जो चीफ लिम्फ नोड होते हैं उसमें वो है एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप। सो ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो है एंटीरियर ग्रुप। देन कम्स द पोस्टीरियर ग्रुप, दिस इज द पोस्टीरियर ग्रुप, देन द लैटरल ग्रुप, देन द सेंट्रल ग्रुप एंड देन द अपाइकल ग्रुप। सो ये 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहलाते हैं और एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। सबसे पहले चीफली एंटीरियर, देन पोस्टीरियर, देन दिस लैटरल, देन दिस सेंट्रल एंड दिस अपाइकल लिम्फ नोड्स। उसके बाद आती है द एंटीरियर थोरेसिक और पैरास्टर्नल नोड्स which lie along the internal mammary thoracic vessels. So we have seen यहाँ पे internal thoracic vessels हमने देखी, internal thoracic artery and internal thoracic veins. So इन्हीं vessels के साथ यहाँ पे nodes present होते हैं, lymph nodes present होते हैं, उन्हें बोला जाता है anterior thoracic nodes और also parasternal nodes. उसके बाद supraclavicular nodes, supraclavicular means above the clavicle. So clavicle के above present होते हैं supraclavicular nodes. Then we have cephalic or also known as deltopectoral nodes. So these are the deltopectoral nodes जो कि deltopectoral triangle में present होते हैं. Then we have posterior intercostal nodes which lying in front of the head of the ribs. So these are the posterior intercostal nodes. And then we have subdiaphragmatic and subperitoneal lymph nodes.
जो सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स है ये यहाँ एब्डोमेन रीजन में, अपर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं बिलो द ब्रेस्ट। सो हम लोगों ने लिम्फ नोड्स देख लिए। सबसे पहले एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, उसमें आता है एंटीरियर लिम्फ नोड, पोस्टीरियर लिम्फ नोड, lateral lymph nodes, central lymph node and apical lymph nodes. Then we have seen the anterior thoracic nodes जो कि internal thoracic artery के vessels के along lie करते हैं. Then the supraclavicular lymph nodes, then the deltopectoral or cephalic lymph nodes, and then posterior intercostal lymph nodes, and lastly subdiaphragmatic and subperitoneal lymph plexuses जो कि अपर एब्डोमिनल रीजन में बिलो द ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट विल सी द लिम्फेटिक वेसल्स। सो ब्रेस्ट में टू टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, एक जो सुपरफिशियली रन करती है दैट इज सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, और जो सेकेंड जो डीप रन करती है, डीपली रन करती है, वो होती है डीप लिम्फेटिक्स। सो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ये ड्रेन करती है स्किन को ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट फॉर द निप्पल एंड एरियोला। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ये ब्रेस्ट की सिर्फ स्किन को ड्रेन करती है, निप्पल्स और एरियोला को ड्रेन नहीं करती है। एंड दे पास रेडियली टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती है वो रेडियली पास करती है सराउंडिंग लिम्फ नोड्स में। सो कौन से लिम्फ नोड्स को ये कवर करती है और कौन से लिम्फ नोड्स में सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन होती है, वो होते हैं एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स जो हमने इससे पहले भी देखे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल एंड अपाइकल। इन 5 लिम्फ नोड्स में सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन करती है। उसके साथ साथ एंटीरियर थोरैसिक लिम्फ नोड्स में भी ये ड्रेन करती है, ऑल्सो टू द सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स एंड ऑल्सो टू द सिफेलिक और डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड्स। इन सारे लिम्फ नोड्स में सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ये ड्रेन करती है। एंड डीप लिम्फेटिक्स क्या होती है? डीप लिम्फेटिक्स ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का, दैट इज द पैरेन्काइमा एंड द निप्पल एंड एरियोला। पैरेन्काइमा, निप्पल एंड एरियोला को ड्रेन करती है डीप लिम्फेटिक्स। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हमने देखा जो कि केवल स्किन को ड्रेन कर रही है, बट इट इज नॉट ड्रेनिंग निप्पल एंड एरियोला, बट डीप लिम्फेटिक्स ये पैरेन्काइमा के साथ साथ निप्पल और एरियोला को भी ड्रेन कर रही है। यहाँ पे एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में जब ये लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है तो फ्रॉम द लोअर मीडियल, जो लोअर मीडियल क्वाड्रेंट होता है उससे जो लिम्फेटिक ड्रेन होता है वो अगर ये सब पेरिटोनियल प्लेक्सस में जाता है, सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड्स या फिर सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर लिम्फ ये लोअर मीडियल क्वाड्रेंट से सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में जाता है एंड थ्रू दिस प्लेक्सस इफ इट गोज टू द ओवेरी, देन एक कंडीशन डेवलप होती है ओवेरी की विच इज नोन एज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर ये एक मेटास्टैटिक ट्यूमर होता है ऑफ द ओवेरी, और ये काफी रेयर कंडीशन है, बट इट कैन ऑकर इन द कंडीशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए जब पेशेंट आता है विद द ब्रेस्ट कैंसर तो उस पेशेंट की ओवेरी को भी एग्जामाइन किया जाता है टू डिटेक्ट कि उसमें क्रूकेनबर्ग ट्यूमर ये डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। सो लिम्फेटिक वेसल्स हमने देख लिए, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स। हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट। सो सबसे ज्यादा लिम्फ ये ड्रेन होता है थ्रू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ये 75% ऑफ द लिम्फ ड्रेन करता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बाद एंटीरियर थोरेसिक लिम्फ नोड्स ये 20% ऑफ द लिम्फ ड्रेन करता है। तो सबसे ज्यादा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ने ड्रेन किया विच इज 75%। उसके बाद एंटीरियर थोरेसिक नोड्स ड्रेन करते हैं 20% ऑफ द लिम्फ्स, एंड सबसे लोवेस्ट जो परसेंटाइल होता है वो है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स का, वो ड्रेन करते हैं अबाउट 5% ऑफ द लिम्फ। Also among the axillary lymph nodes, the lymphatic end mostly in the anterior group and partly in the posterior and apical group.
सो हमने प्रीवियसली देखा दैट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में 5 टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा लिम्फेटिक्स ये प्रेजेंट होते हैं इनटू द एंटीरियर ग्रुप, इनटू दिस एंटीरियर ग्रुप, एंड पार्शली प्रेजेंट होते हैं इनटू द पोस्टीरियर एंड अपाइकल ग्रुप। उसके बाद lymph from the anterior and posterior group passes to the central and lateral and through them to the apical and finally it reaches the supraclavicular nodes. So ये उन्होंने पैसेज बताया है कि एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से लिम्फेटिक किस तरीके से, लिम्फ किस तरीके से पास होता है। तो सबसे पहले एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप में लिम्फ आता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप से ये जाता है इनटू द लैटरल एंड सेंट्रल ग्रुप, and from the central group it goes to the apical group and apical group से जो सारा lymph है ये finally drained होता है into the supraclavicular nodes, मतलब जो clavicle के ऊपर जो lymph nodes present होते हैं उनमें at the end जाके ये सारा lymph from the axillary group of lymph nodes ये drain होता है। एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे विच इज अ सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपे। ये सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपे ये लिम्फ वेसल्स का प्लेक्सिस होता है जो कि प्रेजेंट होता है डीप टू द एरियोला। एरियोला के नीचे ये लिम्फ प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपे। और ये प्लेक्सिस ड्रेन होता है इनटू द एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। सो एंटीरियर ग्रुप, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जो एंटीरियर ग्रुप आता है उसमें, एंड पेक्टोरल ग्रुप मींस डेल्टो पेक्टोरल नोड्स में ये सब एरियुलर प्लेक्सस ऑफ सैपे से जो लिम्फ होता है ये इन रीजन्स में और इन नोड्स में ड्रेन होता है। Then the deep lymphatics pass through the pectoralis major muscle and to the clavipectoral fascia to reach the apical nodes and also to the anterior thoracic nodes. So हमने सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स का पैसेज देख लिया। नाउ डीप लिम्फेटिक्स किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। डीप लिम्फेटिक्स पेक्टोरलिस मेजर मसल से एंड क्लैविपेक्टोरल फेशिया से पास होते हुए पहुंचते हैं इनटू द अपाइकल नोड्स। अपाइकल नोड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड अपाइकल नोड से ये ड्रेन करते हैं। ऑल्सो इट ड्रेन्स फ्रॉम द एंटीरियर थोरेसिक नोड्स, जो यहाँ पे एंटीरियर थोरेसिक नोड्स होते हैं उससे भी डीप लिम्फेटिक्स ये ड्रेन होते हैं। एंड एक क्लिनिकल पॉइंट ये है दैट एंटीरियर और सेंट्रल ग्रुप ऑफ नोड्स आर कॉमनली इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट कैर्सिनोमा। सो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जो एंटीरियर और सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है ये दोनों लिम्फ नोड्स मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैर्सिनोमा and they are commonly involved in the breast carcinoma. So we have seen the important points related. Axillary nodes में सबसे ज्यादा lymph drain होता है which is 75%. Then उसके बाद anterior thoracic nodes में 20% of the lymph drain होता है. Then posterior intercostal nodes में 5% of lymph drain होता है. And then we have seen the subareolar plexus जो कि areola के deep present होता है, एक lymph plexus है. And anterior and central groups are commonly involved in the carcinoma of breast. So that's all for today's lecture. In the next lecture, we are going to cover the histology and clinical anatomy of breast. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share with your fellow learners. Thanks for watching this video.